کہ لاپتہ افراد کا تعلق BLA سے ہے۔ اور یہ صاف اور واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ اس پہ آئین اور قانون فالو نہیں ہوگا، اور باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ دہشت گردی ہوگی لوگ جبری طور پر غائب ہوں گے۔ یہ اس بات کو ڈائریکٹلی ہمیں تھریٹ کرنے کے لیے، بلوچستان کے لوگوں کو تھریٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جب تک بلوچستان کا مسئلہ ہے، بلوچستان میں انسرجنسی کا مسئلہ ہے، وہاں پہ لوگوں کو جبری طور پر غائب کیا جاتا ہے۔ بلوچستان کے عوام کے آئینی حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری اب آئین پاکستان پر عائد نہیں ہوتی۔ اور دوسری طرف سے وزیر دفاع کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا مسئلہ فراڈ ہے، وہ پہاڑوں میں جاتے ہیں، وہ جو ہے ملیٹنٹس ہیں، لیکن یہاں پہ جناب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جبری گمشدگیاں تو ہوتی رہیں گی۔ کہ بلوچستان محض پنجاب اور پنجابی ریاست کی کالونی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جی جان بوجھ کے یہ بلوچستان کے مسئلے میں اور خاص طور پر جبری گمشدگیوں کے مسئلے کا ان کو پتہ ہے، یہ جان بوجھ کے اس کو کبھی انسرجنسی سے جو ہے لنک کرتے ہیں، کبھی بلوچستان میں کہتے ہیں کہ لوگ پہاڑوں پر چلے گئے ہیں۔ 1970 میں جو آپ لوگوں نے نعرہ لگایا تھا، ادھر ہم ادھر تم، اب یہ نعرہ بھی آپ ہی لگائیں۔ کیا لاہور میں بلوچستان نے پاکستان سے اعلان لا تعلقی کر دیا ہے؟ ہمارا سمیت بلوچ خواتین کو جیلوں میں ڈالتے ہیں اور انتہائی بے شرمی سے آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے اس وجہ سے ان کو ڈالا کیونکہ ہمیں بلوچ خواتین کی جانب سے خودکش حملوں کا ڈر تھا۔ یہ انتہائی ایک غیر سیاسی وہ بلاول بھٹو زرداری جو کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، آج میں سمجھتی ہوں کہ ان کی حکومت میں ان کے لیے کہتی ہوں کہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا ڈیموکریسی کی بجائے کہ آمریت از دی بیسٹ ریونج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، یہ فروز NB نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ آپ سے وہی گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، خود بھی کریں، دوستوں سے کہیں اور رشتہ داروں سے کہیں وہ بھی سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کوشش کریں کہ کمنٹ کر دیا کریں تاکہ مجھے میری اصلاح ہو سکے۔ ناظرین، اہم ترین جو آج کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت بلوچستان نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے۔ جی ناظرین، حکومت بلوچستان نے ریاستی انتظامات، ریاستی خفیہ اداروں، سیکیورٹی اور معدنیات کے تحفظ کے حوالے سے ریاستی اور حکومتی اقدامات پر مکمل عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ جی ناظرین، یہ فیصلہ کل ہوا تھا اور اس حوالے سے بلوچستان حکومت نے دو ٹوک الفاظ میں اور واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ BLA کے حملوں کے بعد انہیں شاید اب کسی پر بھروسہ نہیں رہا، اس لیے گزشتہ روز جو بلوچستان کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ اب وہ انٹیلیجنس کو مزید منظم کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بلوچستان میں جو انٹیلیجنس سسٹم موجود تھا وہ محض بلوچوں کی ٹارگٹ کلنگ کے لیے تھا، اس سے آگے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اب اس کو منظم کیا جائے گا اور کوئٹہ کے ریڈ زون کی حفاظت کے لیے کنکریٹ کی دیوار بھی تعمیر کی جائے گی اور حکومت کا معدنیات اور سرحدی سیکیورٹی کے لیے خصوصی فورس قائم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ سیکیورٹی کے لیے، سرحدوں کی سیکیورٹی کے لیے، کیا سرحدوں کی سیکیورٹی صوبائی معاملہ کب سے ہو گیا ہے؟ یہ میں ابھی تک حیران ہوں جب سے میں نے یہ سنا ہے۔ اور معدنیات کا تحفظ کی بات جہاں تک کی جا رہی ہے تو اس کے حوالے سے تو آلریڈی اتنے ٹاسک فورسز قائم ہیں، اتنے گروپ قائم ہیں، جس طرح CPEC کے پروٹیکشن کے لیے اتنے سارے موجود ہیں چیزیں، اسی طریقے سے معدنیات کے تحفظ کے لیے بھی ریاست نے سب سے پہلے یہی کام تو کیا تھا۔ تو اب ریاست کو کس چیز کی ضرورت پڑی ہے؟ اس وقت وہ بلوچستان گورنمنٹ جس کو جو سیکیورٹی جو انٹیلیجنس نیٹ ورک کو منظم کرنے جا رہی ہے اس کے حوالے سے کچھ افسوسناک چیزیں سامنے آئی ہیں کہ تربت سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ایک مرتبہ پھر موبائل انٹرنیٹ ڈیٹا سروس عارضی طور پر بند کر دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ کے باعث مکران ڈویژن کے اضلاع کوئٹہ اور صوبے کے دیگر حساس علاقوں میں موبائل انٹرنیٹ سروس معطل کی گئی ہے۔ اب یہ جو سرفراز صاحب ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ بلوچستان ایک ایسے دور میں داخل ہو جو گلوبل ولیج کا حصہ ہو، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے جڑا ہو۔ تو اس لیے میں آپ کیا کہہ سکتا ہوں، میں آگے چل رہے جی۔ ایک بندے کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے اور اس کا تعلق ریڈیو پاکستان بلوچستان سے ہے۔
फिर उसको अदालत में पेश कर दिया गया है और अदालत ने उसका रिमांड भी दे दिया है। जनाब उस बंदे पर इल्जाम क्या है? उस बंदे पर इल्जाम यह है कि कलअदम तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी BLA का बयानिया फैलाने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जिसकी शनाख्त जफर इकबाल के नाम से हुई है और फिर उसके बाद उसको अदालत में पेश कर दिया गया। कमाल की बात है ना। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि खुशदार में जो तबाही मची हुई है वो क्या है, पहले मैं आपको बता दूं कि केज के इलाके कोजक बुलेदा में नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है। ताहाल लाश की शनाख्त नहीं हो सकी है। इसके अलावा दाजन के रिहायशी सोहराब बलोच को फोर्सेज ने हब चेक पोस्ट के इलाके बलोच कॉलोनी से हिरासत में लेकर जबरी गुमशुदगी का निशाना बना दिया है। फोर्सेज ने इसको तीसरी मर्तबा जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया है। इसके अलावा BLA ने मंगचर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करके एक एहलकार की हलाकत और 2 के जख्मी होने का दावा किया है। फिर मस्तोंग में FC ने जो हरकत की है वो भी आपको मैं आपके सामने रख रहा हूं कि FC एहलकारों ने मोटरसाइकिल सवारों पर बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में अमानुल्लाह नामी नौजवान जाँ बहक हो गया और एक मोहम्मद दाऊद जख्मी हो गया, जिसको जख्मी हालत में हिरासत में लिया गया और फिर उसको लापता कर दिया गया। इसी तरह इस वक्त आपको पता है कि हीरोफ 2 के बाद बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस महसूर होकर रह गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस अपने कैंटोनमेंट एरियाज से बाहर नहीं आती। अब बहुत मुश्किल हो गया है। ये एक वीडियो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है जिसको कल से फखरिया अंदाज में पेश करने की कोशिश की जा रही है। ये IGFC हैं जो नोशकी का दौरा कर रहे हैं और फखरिया बता रहे हैं कि देखें IGFC तो दौरे करता फिर रहा है। लेकिन इस पूरी वीडियो को मैं स्लो करके चला रहा हूं। जरा मुझे बताइए कि कहीं आपको कोई इंसान तो अपनी जगह पर, कोई कुत्ता भी नजर आता है सड़कों पर, कहीं कोई गधा भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब कर्फ्यू लगा के आप इस तरह के 1000 दौरे कर सकते हैं, तो कर्फ्यू तो पहले खत्म करो, लोगों की जिंदगियां तो बहाल करो। मजा तब आता जब यही IGFC वहीं पे जाता, लोग इसके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर करते। लेकिन वो तो BLA के लोगों के ऊपर कर रहे हैं, वो तो उनके हाथ को चूम रहे हैं, वो तो उनको अपना मसीहा मान रहे हैं, वो तो उनके ऊपर अपनी जान निछावर कर रहे हैं। यही वजह है कि डेथ स्क्वाड को पंजाब बलूचिस्तान में एक बार फिर मुतहरिक कर दिया गया है। डेथ स्क्वाड को फ्री हैंड दे दिया गया है। करो कत्ल जिसको करना है करो। यही वजह है कि जिला खुशदार की तहसील नाल में एक हनबो डैम है, उसके मकाम पर वड और नाल के इलाकों में एक बार फिर रियासती सरपरस्ती में डेथ स्क्वाड की खूनरेज कार्रवाइयां उरूज पर पहुंच चुकी हैं, जिसके बायस पूरा झलावान खौफ व हिरास की अलामत बन चुका है। नाल के इलाके हड़म्बो डैम के करीब, अगर नाम गलत ले रहा हूं तो माजरत चाहूंगा, डेथ स्क्वाड की फायरिंग के नतीजे में कबायली रहनुमा गुलाम हैदर दौलत खान जई समेत 2 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि हिंदू ताजिर मुन्नू मल वल्द चीतोमल, मेरे ख्याल में यही को नाम है, उनके घर पर भी इस तरह हुआ। फिर अब्दुल रशीद वल्द गांवर खान और मिरोवानी और अब्दुल सबूर वल्द मोला बख्श लांगो को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इससे कबल वड में ताजिर नसीर अहमद बिरहमजई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था, जबकि हिंदू ताजिर जो मैंने आपको बताया आपके सामने मुनुमल, उनके घर पर तो खवातीन तक को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब ये रिवायत बन चुकी है बलूचिस्तान में कि घुस जाओ, आपके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस हो नहीं हो, आपका ताल्लुक डेथ स्क्वाड से है तो आपके पास ये अख्तियार है कि आप किसी को भी कत्ल कर सकते हैं, किसी के भी घर में घुसकर आप डकैती डाल सकते हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं। आप स्मगलिंग तक जब कर सकते हैं तो फिर बहुत कुछ कर सकते हैं। अब नाज़रीन, जो अहम तरीन इशू हमारे सामने आ रहा है वो बहुत ही हसास है। मैंने कल भी इस हवाले से बात की थी, लेकिन आज मैं इस हवाले से बात खसूसी तौर पर करना चाह रहा हूं कि ये जो आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस लाहौर में मुनक्कद हुई थी, उसमें जो अपना जो साहब राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी बराए सियासी व अवामी उमूर, क्योंकि ये इलेक्शन हार गए थे,
इसलिए ये मुआविन ख़ुसूसी हैं। तो इन्होंने वहां पर बलूचिस्तान के हवाले से जो बात की है, क्योंकि राना सनाउल्लाह हो या फिर ख्वाजा आसिफ हो, ये PMLN के नहीं हैं। ये बेसिकली जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कोटा पर PMLN के वजीर बनते हैं और उन्हीं की कोटा पर चलते हैं। आपको याद होगा ये वही राना सनाउल्लाह है कि जिस पर जब इस्टेब्लिशमेंट नाराज हुई थी तो इसको पाबंद सलासल कर दिया गया था, इसके ऊपर मनशियात के केस तक लगा दिए गए थे। ये वही राना सनाउल्लाह है जिसकी मूंछें, भवें और सर तक मुंडवा दिया गया था। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। आज वही राना सनाउल्लाह लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में रियासती बयानिए का न सिर्फ जनाजा निकाल रहा है बल्कि बहुत सारी हकायक हैं जिनसे वो पर्दा खोल रहा है, उठा रहा है। अब उनका कहना है कि बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का जवाज पेश करना के हवाले से वो दावा कर रहा है कि लापता अफराद बलूचिस्तान में होते ही नहीं है, और बुनियादी तौर पर जो लापता अफराद होते हैं वो BLA से उनका ताल्लुक होता है और वो उन्हीं से जुड़े हुए होते हैं। तो जब आप BLA से जुड़ जाते हैं तो फिर आप अपने इंसानी हकूक की कुर्बानी देते हैं, यानी फिर उसके बाद आईन पाकिस्तान आपके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार नहीं रहता। यानी बलूचिस्तान के ये जो सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोग जो कराची कैंटोनमेंट से लेकर रावलपिंडी से लेकर पिशावर से लेकर पूरे पाकिस्तान के कैंटोनमेंट्स और अकूबत खानों में और जेल खानों में जिनको बंद कर दिया गया है, जिनको बवक्त ज़रूरत निकाल कर कत्ल कर दिया जाता है, ये जो इज्तिमाई कब्रें निकलती हैं, ये जो तूतक होता है, ये सब प्लांटेड होता है। इनका कहना यही है। तो पिछले साल जिस बात पे महारंग बलोच इस वक्त जेल में, वो मामला क्या था? वो भी तो यही था ना कि आप लोग जो बेनामी कब्रें बना रहे थे, लोगों को छुपाकर आप उनकी तदफीन कर रहे थे। तो राना सनाउल्लाह ने ये बात करके वाजे कर दिया कि बलोचिस्तान के अवाम के पास या जो आईन पाकिस्तान है वो बलोचिस्तान के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता, क्योंकि बलूचिस्तान की हुकूमत ये कह चुकी है कि जो भी लापता हैं वो समझो पहाड़ों पर गए, और जो पहाड़ों पर गए उनसे लातालुकी करें, और लातालुकी नहीं करेंगे तो फिर हम आपको जेलों में डाल देंगे। अब जो लोग लापता हैं उनके हवाले से ये राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट आ गया है आपके सामने। अब आप बताएं कि इसको करें तो करें क्या। अब आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का पूरी अगर हम कॉन्फ्रेंस की बात करें तो मैं समझता हूं कि उसने रियासती बयानिए, रियासती तारीख और पाकिस्तान की तारीख को बरहना करके रख दिया है। राना सनाउल्लाह का बयानिया रियासती बयानिया था, ये वही राना सनाउल्लाह था जिसका मैंने आपको बताया कि रियासत ने उसकी मूंछें तक मोड़ दी थी। वो कहते हैं कि हमने NFC में बलूचिस्तान को अपना हिस्सा दिया है। तो किसने मांगा था आपसे? क्या मतलब इस वक्त अगर आपने NFC में हिस्सा दिया भी बलूचिस्तान को, तो मुझे आप बताएं कि पंजाब के पास जो रेवेन्यू जनरेट करने के कितने रिसोर्सेज हैं? क्या पंजाब के पास समंदर है? क्या समंदर उनके लिए रेवेन्यू जनरेशन का जरिया बना हुआ है? क्या कराची जितनी कोई बड़ी मंडी है कि जहां से आपको सबसे ज्यादा टैक्स वसूल होता है? बल्कि यूं कहें कि पंजाब तो जो बलूचिस्तान और सिंध के रेवेन्यू पर डकैती डालता है। आपने बात की और अपना परवेज रशीद ने भी, वो परवेज रशीद वही डॉन लीक्स वाला जिसको वजारत से रियासत ने जूते पे ठुड्डा मार के फेंक दिया, तो उसकी वजारत तक छीन ली थी। डॉन लीक्स आपको याद होगा। अब ये दोनों साफ फरमा रहे हैं कि हमें तकलीफ है जी कि वहां पर पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड देखकर उनको गोली मार दी जाती है। ये वाकई अच्छा अमल नहीं है, ये काबिल मज़म्मत अमल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं या मतलब मेरा तो खैर मैं कोई स्टेक होल्डर तो नहीं हूं, लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं चाहूंगा कि रियासत को भी चाहिए कि वो भी एक्सेप्ट करे कि वो किस तरह बलोचों के घरों में घुसते हैं, किस तरह उनकी आईडीज चेक होती हैं,
किस तरह उनका मावराए अदालत कत्ल होता है, किस तरह उनकी जबरी गुमशुदगियां होती हैं, किस तरह उनके शनाख्ती कार्ड देखे जाते हैं, किस तरह उन्हें इस्लामाबाद टोल प्लाजा से लेकर और हब कराची जाने के लिए हब के टोल प्लाजा के पास उनके शनाख्ती कार्ड चेक होते हैं, किस तरह फिर उनको उतारा जाता है, फिर किस तरह उनको जबरी तौर पर लापता किया जाता है। अगर वो सरहदें क्रॉस कर भी जाएं तो टंडो जाम ज़रई यूनिवर्सिटी से किस तरह उन्हें उन तलबा को उठाकर जबरी तौर पर लापता कर दिया जाता है। शनाख्ती कार्ड देखकर जरा ये भी राना साहब बता दें कि ये किस खाते में जाएगा, ये किस खाते में जाएगा। पिछले साल 2025 में बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ, आपको पता है कि जबरी गुमशुदगियों में 75% इजाफा हुआ है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और तक कमोबेश 100 से ज्यादा नौजवानों का मावराए अदालत कत्ल हुआ है बलूचिस्तान में। जनाब राना सनाउल्लाह साहब और 12 बेटियां जबरी तौर पर गुमशुदा हुई, जिनमें से इस वक्त भी 6-7 बच्चियां जो है वो रियासत की तहवील में है। बात करते हैं अपना औरतों की, तो पंजाब से कितनी औरतों को जबरी तौर पर हिरासत में लेकर तहवील में लेकर उनको जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया है? बता सकते हैं आप कितनी औरतें उठाई गई हैं, कितनी औरतों, क्या कहूं मैं, आप मुझे बता देना कि 8 महीने 17 दिन हो चुके हैं महजबी बलोच लापता है। कहां है? आप मुझे बता सकते हैं कि 81 दिन से नसरीना जो जिसकी उम्र 15 साल है वो लापता है। कहां है? आप बता सकते हैं? आप बता सकते हैं कि 70 दिन से फरजाना लापता है। कहां है? ये भी बच्ची है, कहां लापता है? 62 दिनों से रहमा लापता है। उसके अलावा 52 दिनों से हैरुनिसा लापता है। 28 दिन से फातिमा लापता है। ये सिर्फ वो है जो मैं बता रहा हूं। ये जो बच्चियां हैं, ये इतनी सारी जो लापता हैं, ना तो आप कुछ कैसे बता रहे हैं, ना तो आपकी रियासत बताती है, ना इस मुल्क की अदालतें बताती हैं, ना जज बताते हैं, ना ही कोई कानून बताता है, ना ही कोई आइन बताता है। लेकिन आज मैं आपका दिल से मशकूर हूं कि आपने कह दिया कि बलोचों का आइन के बलोचों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान नहीं करेगा। यकीनन ये बच्चियां लापता हैं, गुमशुदा हैं। जबरी तौर पर इनको गुमशुदगी का जब निशाना बना दिया गया है तो फिर इनके हकूक भी, आईनी हकूक भी, इनके बुनियादी हकूक भी सरेंडर हो चुके, और जब इनके बुनियादी हकूक सरेंडर हो चुके तो फिर आईने पाकिस्तान के तहत हलफ उठाने वाली पार्लियामान और फिर उसी आईने पाकिस्तान के तहत हलफ उठाने वाला, हलफ लेने वाला एक जज क्यों कर इनके हकूक की बात करें। बलूचिस्तान के लोग अपने हकूक की सब कुछ खो चुके हैं। तो बहुत अफसोस होता है जब इस तरह की बातें की जाती हैं। बात की गई मजदूरों की कि गवादर में मजदूरों को कत्ल किया गया, नौशकी में एक पूरे के पूरे खानदान उजाड़ दिए गए। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि उस वक्त जो बम्बार्टमेंट चल रही थी, वो जो बम आ रहे थे, क्या आपने उनको फीड नहीं किया था कि जो है वो किसको मारना है किसको नहीं मारना है? भाई जब आप बम फेंकते हैं फिजा से, और तो उस वक्त देखें, इस वक्त बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बलोच महज दहशतगर्द है, बलूचिस्तान महज एक कॉलोनी है, सिंध दूसरा नंबर कॉलोनी है, खैबर पख्तूनख्वा तीसरा नंबर कॉलोनी है, हकीकी पाकिस्तान सिर्फ पंजाब है। तो फिर क्या हुआ? अब एक चीज मैं और यहां पर आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूं। जिस तरह मैंने इब्तिदा में बात की थी कि BLA ने नुकसान पहुंचाया, या आजादी पसंदों ने रियासती बयानिए को नुकसान पहुंचाया, या फिर इसने राना सनाउल्लाह ने और परवेज रशीद ने नुकसान पहुंचाया, पर मैं तो कहता हूं कि इन्होंने तो सब कुछ सारी दुनिया के सामने बता दिया है। यही वजह है कि राना सनाउल्लाह की बकवासियात के बाद जो उन्होंने रिमार्क्स पास किए उस पर शदीद एहतजाज हुआ और शुरका वहां से वॉकआउट करके चले गए। राना सनाउल्लाह को शटअप की कॉल्स दी गई, और फिर यही बयानिया BYC के लिए किया जाता है, फिर फॉरेन फंडिंग के लिए किया जाता है। तो फिर इसी हवाले से मैं देख रहा था आज भी जो है वो अख्तर जान मेंगल का एक स्टेटमेंट था कि बलूचिस्तान में किसी की नहीं बल्कि रियासत की कमर टूटी हुई है।
ریاست بلوچستان میں اپاہج ہو کر رہ گئی ہے. اس کے ذمہ دار حکمران اور ریاستی ادارے ہیں، بلوچستان کے لوگ نہیں. رانا صاحب، آپ نے کہا کہ میں ان کی گارنٹی لوں. پہلے تو انہوں نے کہا کہ کیا میں بی ایل اے کا ایجنٹ ہوں، کہہ رہے کہ گارنٹی لوں. کیا میں ان کا نمائندہ ہوں؟ دودا خان زہری نے نواب نوروز خان کی ذمہ داری لی تھی نا، نوروز خان جس کو قرآن کا واسطہ دے کر آپ لوگوں نے پہاڑوں سے نیچے اتارا تھا. پھر آغا عبد الکریم کی ذمہ داری خان آف کلات نے لی تھی نا، کیا ملا؟ کیا نواب جو ہے وہ اکبر بگٹی کے ساتھ مذاکرات کے لیے جو وفد گیا تھا، کیا وہ گارنٹی نہیں تھی؟ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نواب اکبر بگٹی کو جس طریقے سے مار دیا گیا کلسٹر پھینک کر، تو اس طریقے سے اب آپ کس چیز کی گارنٹی مانگتے ہیں؟ اس وقت یہ جو لاہور مکالمہ اس کو میں کہہ سکتا ہوں، اس کے دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک، یا تو اس لاہور مکالمے کو یا اس آسما جہانگیر کانفرنس کو ایک مکالمے کا نام دیا جائے اور یہیں سے گرینڈ ڈائلاگ کا آغاز کیا جائے کہ ایک بات چھڑ چکی ہے، اب یہ چیزیں پولیٹیکل ہو چکی ہیں. اسی میں ایک پولیٹیکل رابطے بھی ہوتے رہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اقوام متحدہ کے جو ہے مندوب تھے، ان سے سمیع الدین نے بھی ملاقات کی، پھر اختر جان مینگل سے بھی سمیع الدین بلوچ نے ملاقات کی، اور یہ ساری چیزیں چلتی رہی وہاں پر. اور اسی حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لاہور میں جو آسما کانفرنس تھی، اس کو لاہور مکالمے کا نام دے کر یہیں سے مکالمے کا آغاز کیا جا سکتا ہے. یا پھر اس مکالمے کو بلوچستان اور پاکستان کے درمیان علیحدگی کا ایک اعلامیہ یا علیحدگی کا ایک پوائنٹ تصور کر لیا جائے، کیونکہ اب یہی ہو چکا، کیونکہ آسما جہانگیر کانفرنس میں اس لاہور مکالمے میں بلوچستان کے لوگوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا فیصلہ، اپنا ڈیسیشن سب کچھ ریاست کے سامنے رکھ دیا ہے، اور ریاست بھی سمجھتی ہے کہ وہ بلوچستان میں محصور ہو چکی، وہ وہاں پر ڈیفینسو پوزیشن میں ہے. بلوچستان کا طریقے سے حل نہیں ہوگا. اب راہ فرار چاہیے تو پھر یہی ہے لاہور مکالمہ، جس سے آپ معاملات کو افہام و تفہیم کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. بصورت دیگر وہی ہوگا جو 71 میں ہوا تھا. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.